Hello students, welcome to Gnanmanjari Vidyapit Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the today's lecture, we are going to start our chapter number 3 and the name of the chapter is In the Earliest Cities. In the previous video lecture series, we have already completed our chapter number 1 and chapter number 2 of the history, and by the chapter number 3 we will complete our unit number 1 history, and after completion of the chapter number 3 we will move to social and political life. So let's start our chapter number 3. So in the today's lecture we are going to start our chapter number 3, and the name of the chapter is In the Earliest Cities. As we discussed in our previous video lecture, in chapter number 1 and chapter number 2 we have already discussed about life of the earliest humans. So you must remember there are three stages of the earliest humans. First of all, they were hunter and gatherers. After, they developed into farmers and herders, and after farmers and herders are converted into city dwellers. So in this chapter we will discuss about city dwellers. So first of all, let's learn about evidence of city dwellers. So earliest humans were hunter gatherers. Slowly they discovered farming and herding. So you must remember the first stage of earliest humans was hunter gatherers. After some development, they were converted into farmers and herders, and after some development, they were converted into city dwellers. These three stages you must remember. Then, with the discovery of farming, they had to settle down at one place for a long time period. So, फार्मिंग में काफ़ी ज़्यादा डिस्कवरी हुई. इसके कारण फार्मर और हर्डर एक सेटल लाइफ स्पेंड करने लगे. हम अर्लीस्ट ह्यूमंस की बात करें तो हंटर गैदरर्स और फार्मर हर्डर्स ये सभी अनसेटल लाइफ स्पेंड करते थे. मीन्स ये सभी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे फॉर द सर्चिंग ऑफ फूड. बट अराउंड 4700 ईयर्स अगो क्या हुआ था कि ये सभी सेटल लाइफ स्पेंड करते थे. कोई एक पर्टिकुलर प्लेस पे लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए अपनी लाइफ स्पेंड करते थे. इसी के कारण धीरे धीरे विलेजेस और सिटीज का डेवलपमेंट हुआ. सो दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस which over the time led to the development of cities. So first of all, earliest villages means villages का development हुआ और धीरे धीरे villages में से cities का development होता है. Then the timeline below shows this evolution of the earliest humans from hunting gathering to city life. So यहाँ पर we can see here like the development of earliest humans. Like in this picture we can see around 2 million years ago earliest humans were hunter gatherers. After some development in around 12,000 years ago they were converted into farmers and herders, and after some development around 4700 years ago they were converted into city dwellers. So these are three important stages of the earliest humans. Then let's see about evidence of the city dwellers. So around 80 years ago, archaeologists discovered Harappa and realized that it was one of the oldest cities in the Indian subcontinent, developed around 4700 years ago. So around 80 years ago, आज से 80 years पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने हड़प्पा सिटी का डिस्कवरी किया था, और इसी से हमें ये पता चला था कि इट वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे ओल्डेस्ट सिटी था हड़प्पा, एंड हड़प्पा का डेवलपमेंट हुआ था अराउंड 4700 ईयर्स अगो. तो आप सभी को ये सभी पॉइंट्स याद रखने होंगे कि अराउंड 80 ईयर्स अगो archaeologists discovered Harappa and realized that it was one of the oldest cities of the Indian subcontinent,
and it is developed around 4700 years ago. Then, since Harappa was the first site to be discovered, all other sites from where similar buildings things were found are known as Harappan cities or sites. So, हड़प्पा फर्स्ट साइट थी जो डिस्कवर हुई थी और उसी के आसपास जो भी साइट डिस्कवर हुई थी यहाँ पर सिमिलर बिल्डिंग और सिमिलर थिंग्स हमें मिलती है, तो ये सभी को हम क्लब में क्या कहेंगे, हड़प्पन सिटीज और हड़प्पन साइट्स। सो हड़प्पन साइट्स ये हमारे इंडिया में डिस्कवर हुआ था और इससे हमें पता चलता है कि अर्लीस्ट ह्यूमंस जो सिटी ड्वेलर्स थे ये अपनी लाइफ किस तरीके से स्पेंड करते थे। Then let's move to practice question 14.1. So, question is, on the map of the Indian subcontinent given below, mark any three Harappan sites in India and two sites in Pakistan. So, आपको मैप एक्टिविटी में क्या करना है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हड़प्पन साइट्स जो इंडिया में थी और पाकिस्तान में थी, ये सभी साइट्स को लोकेट करनी है। So, first of all, let's learn about Harappan sites in India and Harappan sites in Pakistan. So, there are three famous Harappan sites in India like Kalibangan, Lothal and Dholavira. Then there are two important sites in also in Pakistan like Harappa and Mohenjo-daro. So now let's locate the sites of the Harappan civilization. So in this map we can see Harappa and Mohenjo-daro are situated in the Pakistan country and Kalibangan, Dholavira and Lothal are situated in India. So आप सभी को ये साइट्स अपनी सप्लीमेंट्री बुक में लोकेट करनी है। लाइक हड़प्पा कहाँ पर है, मोहेंजोदड़ो कहाँ पर है, ये सभी पाकिस्तान कंट्री में है। देन कालीबंगन की बात करें, कालीबंगन इज सिचुएटेड इन राजस्थान स्टेट। देन धोलावीरा एंड लोथल आर लोकेटेड इन गुजरात स्टेट। तो आप सभी को अपनी सप्लीमेंट्री बुक में ये सभी इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स को लोकेट करना है। Then let's move to our next point, and it is key features of Harappan cities. So, as humans organized themselves into the cities, they started living in newer and different ways as compared to farmer and herders. So, जिस तरीके से humans का development हुआ, फार्मर और हर्डर्स में से ये सभी बन गए थे सिटी ड्वेलर्स। सो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, तो इसी के कारण अब सिटी ड्वेलर्स काफ़ी न्यूअर और डिफरेंट वे में अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता था। सो इसी के कारण काफ़ी प्लान सिटी, ड्रेनेज सिस्टम, स्ट्रीट्स का प्लानिंग ये हमें काफ़ी अच्छी तरीके से देखने को मिलता है इन द हड़प्पन cities. So here are some key features that explain the change. So let's learn about them. So first of all, first point is how planned cities were. So फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या जानना है कि हड़प्पन सिटीज का प्लानिंग किस तरीके से होता था, कि मीन्स उसमें प्लानिंग क्या होता था। सो सिटाडेल एंड लोअर टाउन ये की फीचर है प्लानिंग के लिए। सो हड़प्पन cities were divided into two parts, a smaller higher citadel and a lower larger town. So हड़प्पन सिटी ये दो पार्ट में डिवाइडेड थे। जो पहला पार्ट था ये काफ़ी स्मॉल था बट हायर एरिया पे था, मीन्स उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा थी और इसी को हम क्या कहेंगे, सीटाडेल। एंड सेकेंड पार्ट था जो लोअर हाइट पे था बट ये काफ़ी लार्ज प्रोपोर्शन में था और इसका नाम था टाउन। सो हड़प्पन सिटीज वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सिटाडेल एंड लार्जर टाउन। सिटाडेल काफ़ी हायर एरिया पे था बट यहाँ पर पॉपुलेशन और इसका प्रोपोर्शन काफ़ी स्मॉल था। बट टाउन की बात करें यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन थी और ये लोअर एरिया में हमें देखने को मिलता था। सो सिटाडेल और लोअर टाउन से हमें ये पता चलता है कि हड़प्पन सिटीज़ में भी ग्रुपिज्म देखने को मिलता है। लाइक सिटाडेल में जो पर्सन रहते थे ये काफ़ी स्पेशल थे, काफ़ी रिच पर्सन थे, और टाउन में जो लोअर एरिया पे रहते थे ये सभी थोड़े से पुअर और मीडियम क्लास के
पर्सन होते थे। तो यहाँ पर भी हमें रिच और पुअर में ग्रुपिज्म देखने को मिलता है। Then let's learn about special buildings. So, special buildings were constructed on the citadel. Citadel जो हायर एरिया था, यहाँ पर काफ़ी स्पेशल बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन हुआ था. So, the Great Bath is a watertight tank with steps leading down into the tank from two sides. So, special buildings में first point है Great Bath. In this picture we can see Great Bath at Mohenjo-daro. सो मोहेंजोदड़ो में से हमें ग्रेट बाथ का एविडेंस मिला है और इससे हमें पता चलता है कि जो सीटाडेल था, हायर एरिया था, यहाँ पर काफ़ी स्पेशल बिल्डिंग्स हमें देखने को मिलती है। ग्रेट बाथ की बात करें तो यहाँ पर वाटर टाइट टैंक हुआ करता था और इसमें भी स्टेप्स होते थे और ये दोनों साइड पे ये हमें स्टेप्स देखने को मिलते हैं। तो इन दिस पिक्चर वी कैन सी द स्टेप्स that leading down into the tank. Then some cities like Mohenjo-daro, Lothal and Harappa had big store houses. तो ये भी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मोहेंजो-दारो, लोथल और हड़प्पा यहाँ पर हमें स्टोर हाउसेस भी देखने को मिलते हैं. स्टोर हाउसेस was used for the storing of grains. जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता था, इसको स्टोर करने के लिए होते थे स्टोर हाउसेस. Then some cities like Kalibangan and Lothal had fire altars where sacrifices may have been performed. So Kalibangan and Lothal ये दो ऐसे रीजन थे जहाँ पर हमें फायर अल्टार्स भी देखने को मिलते हैं और ये फायर अल्टार्स का यूज़ होता था फॉर द सेक्रीफाइंग प्रोसेस. मीन्स जिसकी डेथ होती थी, इसको फायर अल्टार्स में दफनाया जाता था. Then, well-baked bricks were laid in an interlocking pattern, making the buildings stronger. Then, bricks की बात करें कि स्पेशल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता था, इसमें यूज़ होती थी well-baked bricks. ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसके कारण जो बिल्डिंग्स भी बनती थी, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन की होती थी. Then third important point, houses and the drainage system. So houses की बात करें तो ये भी काफ़ी well planned थे और हड़प्पन civilization was known for the drainage system. Drainage system काफ़ी famous थी और काफ़ी special थी. One or two story houses were built with rooms around a country yard. Perhaps houses, drains and streets were planned and built at the same time. So, हड़प्पन सिविलाइजेशन के सिटीज की बात करें तो उस पे हाउसेस काफ़ी वेल प्लान थे, यहाँ पर रूम्स भी काफ़ी ज़्यादा थे. और हम बात करें कि हाउसेस, ड्रेन्स, स्ट्रीट्स ये सभी सेम टाइम एक ही टाइम पे बनाया गया था. मीन्स यहाँ पर हमें उसकी प्लानिंग देखने को मिलती है कि एक ही टाइम पे ये सभी प्लान हुआ था और इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था. देन covered drains were laid in straight lines with a gentle slope to allow the flow of water. So ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रेनेज सिस्टम? ड्रेनेज सिस्टम मीन्स जो वेस्ट वाटर होता है उसको बाहर निकालने की प्रोसेस. तो ये भी काफ़ी वेल डेवलप थी. इसमें भी क्या था कि जो स्लोप बनाया गया था, स्लोप के कारण क्या होता है कि जो वाटर का फ्लो है ये कंटिन्यूसली चलता रहता है. देन हाउस ड्रेन्स वर ऑफन कनेक्टेड टू स्ट्रीट ड्रेन्स एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड टू बिगर वंस. ड्रेन्स में भी क्या होता था कि हाउस ड्रेन से ये स्ट्रीट ड्रेन्स के साथ कनेक्टेड थे और इसी के कारण हम कह सकते हैं कि स्मॉलर ड्रेन्स लेड टू बिगर वंस. और इसी के कारण जो वेस्ट वाटर होता था वो एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से फ्लो हो सकता था. देन इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर क्लीनिंग. और रेगुलर इंटरवल्स पे हमें इंस्पेक्शन होल्स देखने को मिलते थे इन द ड्रेनेज सिस्टम और इसी के कारण क्लीनिंग प्रोसेस भी काफ़ी इजीली हो सकती थी. तो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. यू मस्ट रिमेंबर about the drainage system. Then let's move to our next topic and it is
How people lived in Harappan civilization. So, there are three types of people in the Harappan civilization: rulers, scribes, and craftsperson, and they had specific roles in the cities. So let's learn about their role in the cities. So rulers probably plan the construction of special buildings in the cities. रूलर्स जो फर्स्ट टाइप है, इसका रोल ये था कि ये सभी स्पेशल बिल्डिंग्स का प्लानिंग करते थे. रूलर्स प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटीज. देन they may have sent people to get metal, precious stones and other things from far off lands. And rulers क्या करते थे? People को भेजते थे. Sent people to get metal, precious stones and other things from far off land. Far off lands means काफी दूर ये सभी को भेजते थे. और ये सभी पीपल क्या करते थे? मेटल, प्रीशियस स्टोन्स और अदर थिंग्स को पहुंचाते थे अपने सिटी में. देन व्हाट इज द रोल ऑफ स्क्राइब्स? सो स्क्राइब्स न्यू हाउ टू राइट. They prepared the seals and may have written on other materials that have not survived. So, scribes scribes क्या करते थे? लिखने का काम करते थे. They are मास्टर इन द राइटिंग. तो ये सभी राइटिंग का काम करते थे. और ये सभी क्या करते थे? दे प्रिपेयर्ड द सील्स. सील्स मीन्स कॉइन. ये सभी कॉइन बनाते थे और इसमें राइटिंग करते थे. देन हैव रिटन ऑन अदर मटेरियल्स दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड. और कुछ अदर मटेरियल्स पे भी लिखने का काम करते थे, बट आज हमें इसके कोई एविडेंस मिलते नहीं हैं. देन क्राफ्ट पर्सन का क्या रोल था? व्हाट इज द रोल ऑफ क्राफ्ट पर्सन इन हरप्पन सिविलाइजेशन? सो क्राफ्ट पर्सन मेड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन देयर होम्स एंड और इन द वर्कशॉप. सो क्राफ्ट पर्सन क्या करते थे? कई सारी थिंग्स को बनाने का काम करते थे. हम बात करें ब्लैक स्मिथ. ब्लैक स्मिथ क्या करता है? मेटल्स को शेप देता है और कुछ ना कुछ थिंग्स को बनाता है. इस तरीके से हम बात करें कारपेंटर, तो ये भी वुडन जो भी मटेरियल है इसको बनाने का काम करते हैं. तो इसी तरीके से क्राफ्ट पर्सन भी कुछ ना कुछ थिंग्स को बनाते थे. ये सभी काफ़ी स्पेशलिस्ट थे अपने वर्क पे. जैसे कि ब्लैक स्मिथ की बात करें तो ये सभी मेटल वर्क में काफ़ी स्पेशलिस्ट थे. इसी तरीके से कारपेंटर की बात करें तो ये सभी वुडन मटेरियल बनाने में काफ़ी स्पेशलिस्ट थे. सो सम ऑफ इट्स आइटम फाउंड एट हरप्पन साइट्स इंडिकेट दैट दे मे हैव बीन मेड बाय स्पेशलिस्ट. और ये सभी के एविडेंस हमें काफ़ी मिले हैं इन द हरप्पन साइट्स. और हमें इससे पता चलता है कि ये सभी कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक पे, कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट पे स्पेशलिस्ट थे. Then let's move to next point, and it is emergence of craft. So let's learn about craft production in Harappan civilization. So Harappan sites have items made of several metals like gold, silver, copper and bronze. Beads, jet weights, stone seals, pots, spindle walls and blades have also been found at these sites. सो क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात करें, मेटल में से जो भी कुछ थिंग्स बनती है, इसके प्रोडक्शन की बात करें तो हरप्पन साइट्स में हमें काफ़ी ऐसी आइटम्स मिली है जो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और ब्रॉन्ज ऐसी प्रेशियस मेटल में से उसका प्रोडक्शन हुआ है. सो बीड्स, चैट वेट्स, stone seals, pots, spindle walls, and blades have been also found at these sites. So beads means मोती की माला, चैट weights means जो weighing करने के लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं. Then stone seals पत्थर के सिक्के, पोर्ट्स मीन्स घड़ा, स्पिंडल वॉल्स मीन्स माला और ब्लेड्स ये सभी भी हमें हरप्पन सिविलाइजेशन में से मिला है. Then, stone seals were generally rectangular with an animal carving on them. Pots often had beautiful black designs on them. So, stone seals, पत्थर के सिक्के,
ये भी हमें मिले हैं फ्रॉम द हरप्पन सिविलाइजेशन। और जनरली इसका शेप कैसा होता था? रेक्टेंगुलर शेप। यू मस्ट रिमेंबर द शेप ऑफ द स्टोन सील्स फ्रॉम हरप्पन सिविलाइजेशन। देन पोर्ट्स की बात करें, पोर्ट्स ऑफन हैड ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइंस ऑन देम। ये पोर्ट्स होते थे, इसमें काफ़ी ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन भी हमें देखने को मिलती थी। देन चिल्ड्रन may have played with terracotta toys found at these sites. चिल्ड्रन टेराकोटा टॉयज से भी खेलते थे, तो इससे हमें टेराकोटा टॉयज के भी काफ़ी सारे एविडेंस मिले हैं फ्रॉम द हरप्पन सिविलाइजेशन। Then, raw materials needed for craft production were either available locally or brought in from distant lands। जो भी रॉ मटेरियल्स होता था क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, इसके भी हमें काफ़ी एविडेंस मिले हैं इन द हरप्पन सिविलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान इन इंडिया एंड ओमान इन वेस्ट एशिया। सो कॉपर होता था, ये हमें प्रेजेंट डे राजस्थान, जो हमारा राजस्थान स्टेट है, और ओमान कंट्री है, यहाँ से कॉपर अवेलेबल होता था। देन टीन फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान। हरप्पन सिविलाइजेशन में टीन हमें मिलता था फ्रॉम द अफगानिस्तान एंड ईरान कंट्री। देन गोल्ड फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका। गोल्ड का काफ़ी प्रोपोर्शन कर्नाटका स्टेट में हमें देखने को मिलता था ड्यूरिंग द हरप्पन सिविलाइजेशन। Then, precious stones from present-day गुजरात, अफगानिस्तान एंड ईरान। जो प्रीशियस स्टोन्स थे, ये हमें गुजरात, अफगानिस्तान और ईरान में से काफ़ी इजीली अवेलेबल होते थे इन द हरप्पन सिविलाइजेशन। Then let's move to some question answer. So, what did the rulers do in the Harappan cities? हमने अभी डिस्कस किया कि सभी का काफ़ी डिफरेंट रोल था। सो रूलर्स का क्या रोल था इन द हरप्पन सिटीज? सो द रूलर्स सेंट पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल्स, प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। सो रूलर्स का मेन रोल क्या था कि ये सभी पीपल को डिस्टेंट लैंड मीन्स काफ़ी दूर कोई भी प्लेस है यहाँ पर भेजते थे, और ये सभी पीपल का काम ये था कि टू गेट मेटल्स, प्रेशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। देन व्हाट डिड द स्क्राइब्स डू? स्क्राइब्स का काम क्या था? सो द स्क्राइब्स हेल्प्ड प्रिपेयर द सील्स एंड परहैप्स wrought on other material that have not survived। सो स्क्राइब्स का काम ये था कि ये सभी सील्स बनाते थे, मीन्स सिक्के बनाने का काम करते थे, और इसमें ये सभी राइटिंग प्रोसेस भी करते थे। देन क्राफ्ट पर्सन की बात करें, व्हाट डिड द क्राफ्ट पर्सन डू? सो द क्राफ्ट पर्सन्स मेड ऑल द काइंड ऑफ थिंग्स आइदर देयर होम्स और इन द स्पेशल वर्कशॉप। सो क्राफ्ट पर्सन क्या करते थे? ये सभी डिफरेंट थिंग को बनाने का काम करते थे। The next question, what kind of toys have been found in Harappan cities? So right answer, many terracotta toys have been found in the Harappan cities. Then let's move to practice question 15.1. So here it is fill in the blank. So the Indus Valley civilization is known as the blank civilization. So here right answer is Harappan civilization. So you must remember the Indus Valley civilization is known as the Harappan civilization. Then let's move to practice question 15.2. So question is, which evidence found at Harappan sites indicates that these cities were planned? So हमें ऐसे कौन से एविडेंस मिले हैं जिससे हमें पता चलता है कि हरप्पन सिटीज के हरप्पन साइट्स के सिटी काफ़ी वेल प्लान्ड थे? So answer is, the Harappan sites contain many different evidence to show that those cities were planned. Many Harappan cities were divided into lower and upper towns. Houses, streets and drains were built together. Then the presence of special buildings such as
the great bath and granaries also indicates that these were planned. So हड़प्पन साइट्स की बात करें तो ये काफ़ी वेल प्लान थी। इसका एविडेंस हमें मिलता है कि ये दो पार्ट में डिवाइडेड थी। मैनी हड़प्पन सिटीज वर डिवाइडेड इनटू लोअर एंड अपर टाउन। देन हम बात करें हाउसेस, स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स, ये भी काफ़ी हमें अच्छे वेल प्लान देखने को मिलते थे। देन द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स सच एज द ग्रेट बाथ एंड द ग्रेनरीज ऑल्सो इंडिकेट्स दैट दीज वर प्लान। हम बात करें कि स्पेशल बिल्डिंग्स जैसे कि ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, स्टोर हाउसेस, ये सभी भी हमें हड़प्पन साइट्स में देखने को मिलते थे और इसी के कारण हम कह सकते हैं कि हड़प्पन साइट्स इंडिकेट्स दिस सिटीज वर प्लान। Then let's move to practice question 15.3. So here question is, how did the Harappan people use the following things? Like first seals. So क्वेश्चन ये है कि हड़प्पन पीपल जो डिफरेंट थिंग्स का यूज करते थे तो इसका यूज क्या होता था। तो सील्स की बात करें तो वर यूज्ड फॉर ट्रेड। सील्स वर यूज्ड फॉर द ट्रेड एक्टिविटी। देन बीड्स वर यूज्ड एज ज्वेलरी एंड प्रीशियस आइटम्स। सो बीड्स मीन्स मोती की माला, ये ज्वेलरी और प्रीशियस आइटम्स के लिए यूज होता था। देन कॉटन की बात करें, कॉटन वॉज यूज्ड फॉर क्लोथिंग एंड ट्रेड। इसका यूज होता था क्लोथिंग के लिए, क्लॉथ बनाने के लिए और ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए। देन फेन्स की बात करें तो फेन्स वॉज यूज्ड एज रॉ मटेरियल टू मेक ज्वेलरी। तो इसका यूज होता था फॉर द रॉ मटेरियल टू मेक ज्वेलरी। Then let's move to practice question 15.4. So question is, describe the craft produced and the work that people in the Harappan civilization. So क्राफ्ट प्रोड्यूस जो होते थे और इसका वर्क किस तरीके से होता था, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन करना है। सो द वेरियस क्राफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय द हड़प्पन पीपल आर स्टोन वेट्स मेड ऑफ जेट, अ काइंड ऑफ स्टोन। सो स्टोन वेट्स, इसका यूज कहाँ पर होता था, वेइंग प्रोसेस के लिए। तो ये चेट में से बना हुआ होता था। देन ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स मेड ऑफ गोल्ड। जो ऑर्नामेंट्स होते थे, ज्वेलरी होती थी, ये बनी होती थी फ्रॉम द गोल्ड। देन बीड्स मेड आउट ऑफ कार्नेलियन और रेड स्टोन। जो बीड्स होते थे ये कार्नेलियन में से बने होते थे। देन स्टोन ब्लेड्स की बात करें, ये सभी क्राफ्ट प्रोडक्शन काफ़ी फेमस था इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो द वर्क that people in the Harappan cities did included planning and construction, craft work and trade. So mainly हड़प्पन cities के जो पर्सन थे ये सभी प्लानिंग करते थे, कंस्ट्रक्शन करते थे बिल्डिंग का, देन क्राफ्ट वर्क होता था और ट्रेडिंग एक्टिविटी भी होती थी इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। Then let's move to our next topic, and it is how people in the Harappan civilization got their food. Means Harappan civilization के people किस तरीके से अपने food को obtain करते थे. So we have seen now early humans hunted animals and gathered plant produce. So अर्ली ह्यूमंस की बात करें, हमने लेक्चर सीरीज में देखा था कि अर्ली ह्यूमंस थे ये हंटिंग करते थे, प्लांट प्रोड्यूस को गैदर करते थे और इसी तरीके से अपने फूड को ऑब्टेन करते थे। बट धीरे धीरे ग्रेजुअली उसमें डेवलपमेंट हुआ और फार्मर और हर्डर क्या करते थे, फार्मिंग एक्टिविटी करते थे और हर्डिंग करते थे और उसमें से अपने फूड को ऑब्टेन करते थे। सो ग्रेजुअली they became farmers and herders. Then, when they established cities, they made systems to make sure that food reached people in the cities. And जभी भी cities का डेवलपमेंट हुआ तो इसमें काफ़ी सिस्टम्स को बनाया गया कि किस तरीके से फूड को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना है। So people in the countryside grew crops and reared animals. They supplied food to people in the cities.
सो सिस्टम क्या थी कि जो कंट्री साइड मीन्स एग्रीकल्चर जो भी एरिया था, इसके पीपल क्रॉप्स को ग्रो करते थे, एनिमल को रियर करते थे, देन ये सभी फूड को सिटी एरिया में सप्लाई करते थे। देन प्लांट रिमेन्स सजेस्ट दैट हरप्पन पीपल ग्रू wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. So प्लांट रिमेन्स मीन्स हमें एविडेंस इससे मिले हैं, इससे हमें पता चलता है कि हरप्पन पीपल वीट, बार्ले, पल्सीस, पीस, राइस, सिसेम और लिंसीड और मस्टार्ड ये सभी क्रॉप्स को जनरली ग्रो करते थे। देन toy models of plows have been found which suggest that the use of plows in agriculture. So plows इसके भी हमें काफ़ी एविडेंस मिले हैं और इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे भी प्लाउस का यूज़ होता था इन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। Then next point, irrigation may have been used as the areas where Harappan sites lie do not receive much rainfall. Animals reached included cattle, sheep, goats and buffalo. So irrigation की बात करें तो हरप्पन साइट्स में कई ऐसे एरियाज थे जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल नहीं फॉल होता था, तो इसी के कारण यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल थी। Then, animals reared included cattle, sheep, goats and buffalo. And animal rearing होती थी उसमें भी जनरली एनिमल होते थे cattle, sheep, goats and buffalo. Then let's move to last part of the today's lecture and it is end of the Harappan civilization. अब तक हमने क्या देखा कि हरप्पन सिविलाइजेशन का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, बट नाउ लेट्स मूव टू एंड ऑफ द हरप्पन civilization. So around 3900 years ago people stopped living in many of the cities. So हरप्पन सिविलाइजेशन का एंड कहाँ पर होता है? अराउंड 3900 years ago. So what are the reasons for the end of the Harappan civilization? So possible causes for the end of the civilization. अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं. So causes क्या थे? First causes is ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स मीन्स जो भी रिवर एरिया था ये काफ़ी ड्राई हो गया था. सो पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द कोजेज नो वाटर सोर्स फॉर ड्रिंकिंग एंड एग्रीकल्चर. सो रिवर्स ड्राई हो गई थी, वाटर अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी नहीं थी, इसी के कारण क्या हुआ कि ड्रिंकिंग और एग्रीकल्चर प्रोसेस के लिए वाटर सोर्स अवेलेबल नहीं था. देन सेकेंड पॉइंट, ओवर ग्रेजिंग एंड डिफोरेस्टेशन. इससे क्या हुआ? ओवर ग्रेजिंग मीन्स जो चराई का काम होता है, इससे जो ग्रास एरिया है ये कम हो जाता है. देन डिफोरेस्टेशन की बात करें मीन्स फॉरेस्ट एरिया को रिमूव करना, तो इसके कारण क्या हुआ? So loss of forest cover and impact on the ecological balance. So overgrazing and deforestation के कारण क्या हुआ कि फॉरेस्ट कवर है इसका लॉसेस हुआ, ये काफ़ी कम होने लगा और इसी के कारण इकोलॉजिकल बैलेंस में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है. Then third point, floods. So due to floods, destruction of lives and property that's seen in the Harappan civilization. So floods के कारण क्या होता है कि जो कई सारी लाइव्स थी, प्रॉपर्टी थी, इसका डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलता है. देन फोर्थ रीजन, लॉस ऑफ कंट्रोल बाय रूलर्स. जो रूलर्स थे, जो काफ़ी लीडर्स थे, इसका कंट्रोल अपनी पॉपुलेशन पे नहीं था. सो इसके कारण क्या हुआ? पीपल माइट हैव फाउट अगेंस्ट ईच अदर. सो इसके कारण पीपल में कोई कंट्रोलर नहीं था, इसके कारण जो हरप्पन सिविलाइजेशन के पीपल थे ये अपने आप एक दूसरे के साथ फाइट करने लगे. सो दीज आर द मेन रीजन फॉर द एंड ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन. Then the above reasons do not completely explain the end of the Harappan cities. Sites in Sindh and West Punjab were abandoned and people began settling towards the east and the south. New cities emerged around 1400 years later. So, ये सभी reasons है, like possible causes for the end of the civilization हमने देखा.
there are four possible causes for the end of the civilization. First of all, drying up of the rivers, overgrazing and deforestation, then floods and loss of control by the rulers. These are four possible causes for the end of the हड़प्पन civilization. But ये सभी हमें completely explain नहीं करते कि किस तरीके से हड़प्पन cities का end हुआ, किस तरीके से हड़प्पन civilization का end हुआ. Then sites in Sindh and West Punjab were abandoned and people began settling towards the east and south. So सिंध एरिया और वेस्ट पंजाब के जो एरिया थे ये सभी खाली हो गए, वर अबेंडेड, एंड पीपल धीरे धीरे साउथ और ईस्ट डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ने लगे. Then new cities emerge around 1400 years later, and ये जो एरिया है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, यहाँ पर न्यू सिटी एमर्ज होने लगे अराउंड 1400 years later. So this is about end of the Harappan civilization. So in this video lecture we have discussed about the life of the city dwellers, and we have also discussed about the Harappan civilization. I hope you understood very well about all the topics, all the points, and if you have any doubts regarding these topics and points, you can ask me anytime. So now this is end of the video. In the next video, we will revise our chapter number 1, chapter number 2 and chapter number 3, and then we will discuss about social and political life. So तब तक के लिए stay home, stay safe and thank you.